धूम्रपान करने से कर्क रोग हो सकता है, इससे आपकी मौत भी हो सकती है। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एकदम एंट्री में काय ते असं हात कोणाला काय भेटणार एक तरीके से ठीक है। हमारी तरह से बात के बाद तो चालू हो जाना देखिए जाना
एक मिनट Sir, come on. Guys, pieces up, pieces up. Mobile. पहले ये क्लियर होने दो, उसके बाद ये Gentlemen, come on, make some noise. Welcome, 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 Dinu sir, and congratulations. Thank you very much. We were talking about nostalgia. तो कैसा क्या अभी मतलब 9 साल बाद दुनिया घूम के वैसी आ गई है? अभी बाहर तो वही बातें हो रही थी, लेकिन good afternoon everybody. We were all, when I was driving here, I was sitting and I was talking to Imtiaz on the way. थोड़े तो बुड्ढे भी हो गए, मतलब 10 साल हो गए. It's a very nostalgic feeling because this was a film which was monumental in my career. You know, I had the opportunity of working with him, and it was a beautiful journey with lots of funny stories. And 10 years later to be here with Irshad Bhai, with everyone, there were so many, Amitabh, Sharda, it's been a journey because it was a monumental film for us, kind of a foundation of our company. And I'm just so happy we could make this again, you know, it's just beautiful. And also I found a friend, and we've stayed friends for a very long time. We did another one, Cocktail. And now I'm happy we've come back with this. And I think this is actually Imtiaz Ali 2.0 also, you know. I think he's taken a whole bunch of young people with him. I think Ida has a very strong role to play in this. And thank you for being there. So I think this, for anything, this is Love Aajkal 10 years later. You know, Imtiaz's take on how love has changed. So without any further ado, the captain of this ship, Imtiaz Ali. Whoa, come on, make some noise, ladies and gentlemen. थोड़ा और noise यार, noise. Wow, that's the kind of welcome we're talking about. Yes. Hi, good afternoon. ट्रेलर कैसा लगा? अभी तो अच्छा ही बोलोगे, बाद में बोलना. मगर ट्रेलर बनाया दीनू ने, उसकी बुराई करनी है तो कर सकते हैं. But मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके यार. मतलब I felt very like the whole scheme थोड़ा slow start होता है, फिर it gets thicker and thicker. So well done. He's made the trailer. Sir, material तो आपका ही है sir, like last time. So very, very happy to be here. I have nothing, no speech to make. It's good to be among friends. Maybe it's because we've been in the industry for so long that we include press also in the group of friends now. But it's great to see so many of you. And very happy. I hope that you like this film. We've tried to speak the truth over here. And अभी क्या करना है? अभी उन्हें बुलाते हैं जिन्होंने ये जर्नी पॉसिबल की और इजी कर दी. हाँ, शिवाशीष, प्लीज कम अप ऑन स्टेज. From Reliance Entertainment, Shivashish Sarkar. Some serious fan following over here, sir. This आपको BGM भी मिला है सर एंट्री पे. This also lays the foundation for Window Seat Films, which is a company that Reliance and we have come together for.
So this is again a monumental film. Every Love Aajkal, I think, is going to be a monumental film. So this is for us, for Window Seat Films, a very monumental film. So Shivashish. I think this kind of platforms are always for the creators. For me, my experience is that I'm lucky that I met a great, genuine human being in Imtiaz in last 1.5 years of journey, and film to bante jayega, relationship chalte rahega, but at the end of the day, in this whole journey, I learned a lot with Imtiaz in terms of I mean, the good things which a value system which a human being should have, and that's my journey in the last 1.5 years. And with Dinu in last 3 months, I probably have learned how to make things happen. In last 25 years, I have not learned a lot of stuff, but in last 3 months, 4 months, when I'm working closely with Dinu, I learned that whatever I've learned, there are more things can happen, and how to make things happen, one should take a class Sir, from him. इस picture में एक We should also, I mean, I'm also indebted in this journey that I should also, thanks to Geo Cinema, Geo Studio, Jyoti, who is not here today, but they have supported us a lot in this journey. And of course, Sony, Pen Marudhar, all who have come into this whole journey. Everyone's waiting for, and call your Zoe and... Yes. Yeah, guys. Should we... So, हाँ, मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएंगे? अच्छा, मैं बुलाऊंगा तो आएंगे. So can we have here Miss Zoe Chauhan? Whoa! तो थोड़ा तो और हल्ला बनता है यार. Come on, Too people. much. Ladies and gentlemen. Too much glamour. She was also there on the shoot of the first one, huh? And can we... हेलो गाइस. और क्या बोलूं? हाँ, आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? ओके, होपफुली फिल्म भी आप लोगों को अच्छी लगेगी. आई एम सॉरी, मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे पता नहीं है मैं और क्या बोलूं, बट थैंक यू फॉर कमिंग एंड लाइकिंग द ट्रेलर एंड ओके. All right, to make things even better, on stage can we have Veer? Woo! Come on, make some more noise, yeah. बनता है, बनता है. सर क्या बोलूँ मैं अभी इतना नर्वस किसी फिल्म के पहले नहीं हुआ हूँ, किसी फिल्म के ट्रेलर के पहले नहीं हुआ हूँ, किसी के बाजू में खड़े होके नहीं हुआ हूँ. अच्छा, just a sec. Can we all settle down, please? या वो गिर जाएंगे वहाँ पे. अरे सर, ऐसी दीवानगी नहीं देखी कहीं. बाकी सब सही है. छोटू नहीं यार, We- क्या कर रहा है? We'll just settle down. It's okay. कोई नहीं. सब अच्छा है. ट्रेलर कैसा लगा? क्या कितने नंबर? 1. Cool है, बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. आई थिंक हम बार बार आके सब यही पूछ रहे हैं सबसे कि ट्रेलर कैसा लगा. सुपर हिट. आई एम जस्ट आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स. आई मीन दिस इज द टीम एंड जिसके साथ इट्स लाइक अ ड्रीम टीम. इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर. एंड ये एक्सेप्टेंस स्पीच जैसी हो रही है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से चालू करूँ. सो आई हैंड ओवर द माइक टू यू सर. आप ही बताइए कि I think- यू हैव द माइक सर. We have to say is in the film, and I hope everybody likes it. So before we take their questions, एक चीज जो जानना चाहते हैं, and everybody wants to know about it, that is the first look. ये बड़ा casual सा है सर, और उसके बावजूद ऐसा दिल पे लगता है सर. What do you have to say? कहाँ से आए और किसका आइडिया था? This shot. Actually, this is a very interesting thing. वाह. आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, ट्रेलर का जो लास्ट शॉट है वो भी यही है, राइट? Right. और ये जो और पोस्टर बनाया राहुल नंदा ने, और ट्रेलर
दीनू की सुपरविजन में बना है, दीनू ने बनाया है. So इन दोनों ने आपस में बात नहीं की थी. It just happened coincidentally that Rahul also chose that particular frame to make the poster, and Dinu also chose the same frame to end the trailer. So yeah, I think a very interesting take at the film. Yes. And Frenzy तो सर ये देख लें आप यहाँ क्या हो रहा है. और let me tell you, this is the only film officially मैं कह सकता हूँ या unofficially जिसका ट्रेलर आने से पहले हजारों ट्रेलर्स हैं और करोड़ों में व्यूज गए हुए हैं. मतलब हर किसी ने ट्रेलर बनाया इस पहले लुक के ऊपर. So congratulations to you guys for that. इसका ट्रेलर ऑलरेडी घूम रहा है, इतने सारे घूम रहे हैं, but this is the one, ladies and gentlemen, जिसको अब आपने प्यार देना है. So what we'll do is we'll have a quick photo op and then we'll take the questions. So can we all take the mics, please? Thank you. All right, we're good to go. Here we go. Sir. Can we have the bar stools, please? Congratulations. Thank This is Simran Singh here from First Post. सारा मेरा सवाल पहले आपसे है. थोड़ा आपके लेफ्ट में देखिए. हाँ जी. यहाँ पे. Hi. हाँ जी. So first of all, congratulations to you and the team Thank for the you. fantastic trailer. मेरा सवाल आपसे ये है. It's been almost a Year, हाँ, more than a actually, year. So with yes. the director who is an acclaimed director and with the film जिसके साथ, you know, you have a connection. Your father has done the prequel. Yes. So what do you want to say about this whole scenario, whole feeling? I think that it's genuinely been a dream come true to work with Imtiaz sir. I have really always genuinely, I mean, it's weird to, you know, look at you and be saying this because I've said this to you one-on-one on set in a much more real atmosphere. But I'm going to say it again and mean it as much. It's been a dream come true to work with Imtiaz sir. I think that he is such a warm person, such a gentle person, such a nurturing person. And he's such a clear director. He knows exactly what he wants. And he knows, I mean, hopefully, in my case at least, exactly how to get you there. You know, you'll be doing scenes and you'll be feeling exactly what you should be feeling right before the scene. You know, and I have always, you know, watched all his work. And I still, you know, the reason I'm stammering a little bit and saying, you know, again and again, is because I can't believe that I've had the opportunity to work with him. It's been so special. It's been so wonderful. I know that they've... No, really, sir, I don't know what to say. I still remember the day that I met you in Delhi. And I was like, you know, I'm feeling really bad and like messed up because of the scene that we were shooting the previous day. And you said, that's exactly how you should be feeling. I was a little confused. I was like, that's like borderline sadistic. Why would he say that to me? And then I realized that maybe that is it, you know. He makes you feel what you should feel and that feeling stays. कार्तिक भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि it's been a long journey, मतलब from a Panchnama boy to Sonu, then Chintu Tyagi, and now Love Aajkal. So what do you want to say about the whole journey? You have now a director like Imtiaz, so what do you want to say about it? जी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ. जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा रहा है जब से हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी, फर्स्ट मीटिंग जब हम मिले थे, जब पहली बार मुझे एक्चुअली कॉल आया था एंड सर ने बोला था कि हेलो इज़ दिस कार्तिक, दिस इज़ इम्तियाज़ अली. एंड तो मुझे याद है मैं एक्चुअली उस टाइम लुक्का छुपी की शूट कर रहा था, तब मुझे कॉल आया था. और मैंने अपने आप को वैनिटी में बंद कर लिया था और मैंने बोला था कि मैं वॉशरूम चला गया हूँ और जितनी देर तक ये कॉल चलता रहेगा उतना वॉशरूम में बैठा हूँ. तो मैंने बहाना किया था सेट में ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे. और हमने करीब 45 मिनट शायद से उस फ़ोन कॉल में, फर्स्ट फ़ोन कॉल में बात की थी. ये खबर मेरे पास नहीं थी. ये खबर नहीं आई थी क्योंकि वो ऐसा upset stomach, but this was happening then. And so I think मतलब it's been a wonderful journey. मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. जब सर ने मेरे को एक्चुअली, हम लोग जब बात भी किए थे तो हमने किसी और चीज़ के लिए बात की थी. Eventually Love Aajkal happened and it's like a dream. मैं मतलब सपना जी रहा हूँ वैसा मुझे लग रहा है.
जब भी मेट रॉकस्टार, मतलब हम देखते देखते दोस्तों में या कॉलेज में जाते हुए सबकी फेवरेट मूवीज़ में से कुछ रही हैं. एंड जब पोस्टर भी जब मैंने पहली बार अपना ये देखा, हम दोनों इस पोस्टर में थे, एंड अ फिल्म बाय इम्तियाज़ अली, एंड यू नो, तो वो मैंने सर को मैसेज भी किया था, बोला भी था, मैं 3 घंटे तक 2 घंटे तक मैं बस देख रहा था और फ़ोन को देख रहा था. ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत खुश हूँ. इट्स अ कंप्लीट सर्कल. एंड सर ने जिस तरीके से मुझे वीर और रघु के कैरेक्टर में देखा, एंड जितना इन्होंने हम सबको वाइल डायरेक्टिंग, आई थिंक ही इज़ कम्प्लीटली, फॉर मी ही इज़ कम्प्लीटली चेंज मी एज एन एक्टर. में भी जैसा मेरा थॉट प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है इनसे बात करके, इनसे समझ के. एंड इनका तरीका भी एकदम इतना आसान सा होता है कि हम बस बात करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरफ लेते जा रहे हैं हमें. तो वो एक प्रोसेस में हमेशा से मज़ा आया. एंड मैं भी स्टैमर कर रहा हूँ सारा. आपने भी स्पीच दे दी हमारी हाँ, तरह, मैंने भी लेकिन- स्पीच दे दी, लेकिन बहुत इतनी अच्छी नहीं दी. हेलो बट आई एम ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी. सारा जी एंड कार्तिक जी. जी सर. क्या बात कर रहे? जी सर. जी 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 जी. सर जब इन्होंने बोला था ना कैमरे पे कि जब इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बोला था, उस टाइम मुझे इन पे क्रश आ गया था उस टाइम से. तो फिर तभी मैं फिर शर्माने लगा था हर बार से. हाँ जी. अरे लेकिन मैं क्या जवाब दूं, आप बताइए क्या जवाब दूं. जब भी आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते या इनसे ऐसे सवाल पूछते तो जवाब क्या दें. इन्होंने तो सीधे बोल दिया था. मैं वहां पे अटक गया था कि मैं हाँ बोलूं या तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी सारा. आई डोंट नो सर, आई एम सो सॉरी, कहाँ पे टॉपिक जा रहा है. हेलो हाँ सर. इम्तियाज सर. सारा जी. हेलो. जी जी. इनकी पिछली ट्रेलर लॉन्च पे भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था. ये क्या है कार्तिक? What's going on? Is this love आजकल? Sara, you know it all. Come on. So don't. Come on. No, she knows it. She's a good actor. Thanks. That's why I'm That's the saying. first time he said that to me. देखिए वहाँ पे कितने सार्थक फैंस हैं जो बाहर सब हैं, तो वो किसी रीजन की वजह से होंगे. एंड आई एम श्योर ये कल नहीं, लव आज है. No, listen, I must say that, you know, whenever I hear this Sarthik thing, I just have to say कि आप सही बोल रहे हो. मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म को देखने से पहले किसी भी जोड़ी को इतना प्यार मिला है. तो I am genuinely more than anything just grateful to the audiences for giving us so much love and accepting us as a pair even before seeing us on screen. And I can only hope कि जब आप हम लोगों को स्क्रीन पर देखोगे तो आप लोगों को सार्थक से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा और वीर और जोई से प्यार हो जाएगा, because that is really what it's about. सारा जी एंड कार्तिक जी. इम्तियाज सर. हाय. सारा जी. इम्तियाज सर, दिस इज केयूल फ्रॉम cinestan.com. जी. पंगे करवा के ही मानेंगे संजय जी आज, हैं? आज शादी करनी. उसको पेट्रोल पीने का दिल करता है. हेलो इम्तियाज ओके सर. सारा जी एंड कार्तिक जी, आपके लेफ्ट में हाय. जी सर. जी. ऐसे अरे इस बार वैलेंटाइन डे के मौके पर आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप हमें कुछ बता सकें. सवाल है आप लोग क्या करने वाले हैं? अब आजकल देखने वाले हैं. this. कार्तिक जी. जी. ये देखना है, लव आजकल देखना है, वैलेंटाइन डे के दिन, और क्या करना है? कार्तिक जी आप हाँ क्या करने वाले हैं इस बार. मैं नहीं आएंगे? इनसे क्या पूछ रहे हो ऐसे? अच्छा. नहीं आओगे? साथ में और नहीं तो क्या, हम दोनों डेट पे जाएंगे. हमारी पिक्चर है हाँ. कि और किसके साथ चले जाओगे? हद है यार. नहीं हद नहीं है नहीं यार. नहीं 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 नहीं, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे उस रात को. और ये देखिए आपको रिएक्शन मिल गया. ये मिल गया.
हम दोनों लव आजकल देखेंगे उस रात को. It's a date night. 14th Feb या 13th Feb, दोनों रात को हम सेम मूवी देखेंगे. एंड इम्तियाज इम्तियाज- जी एंड दिनेश जी, आप लोगों से सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं बहुत ही जल्द दोस्ती होती है, बहुत जल्द लव हो जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है. सो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ हो. मगर जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब ये है कि परिभाषा बदलती रहती है. मुझे लगता है कि the relationship as it happens now is very different from how it used to happen in the past. And मतलब प्यार की परिभाषा बदलती रहती है यार वक्त के साथ साथ. और उसी वजह से लव आजकल जो है ना वो बार बार ख्याल में आती है कि आज की लव आजकल क्या हो सकती है, कि कल की क्या हो सकती है, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो हाँ, चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग हो गई हैं, मगर जिस वजह से एक लड़का और एक लड़की साथ आते हैं वो कारण नहीं बदला है. तो आप हिम्मत मत हारिए. इम्तियाज सर बिल्कुल सर. इम्तियाज सर मैं भी आपके लिए सेम विश करता हूँ सर. इम्तियाज सर, हाय. यहाँ आपके सामने, हाय, दिस इज केयूर फ्रॉम cinestan.com. सर मेरे आपके लिए 2 सवाल है. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एवरी लव आजकल फिल्म विल बी मॉन्यूमेंटल. तो क्या इसका ये मतलब है कि आगे भी आप इसी सीरीज में फिल्म्स बनाएंगे? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत फ्रेंचाइजेबल आइडिया है. आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक ही टाइटल की 2 बार फिल्में मैंने बनाई है. इस वजह से बनाई है कि 10 साल बाद मुझे लगा कि जिस बेसिस पे मैंने पहली फिल्म बनाई थी वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, नया हो चुका है, और एक नई बात उसी बात में कहने का मौका मुझे मिल रहा है. उसके बाद मुझे लगा, और दीनू और मैं बहुत बात कर रहे थे उस समय, कि इस चीज़ को आगे शायद बढ़ाया जा सकता है. अगर कुछ साल बाद लगे कि आज और कल जिस तरह से जो रिलेशनशिप का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बदल चुका है, कुछ नई बात आ चुकी है जिसमें एक नई कहानी है, तो वो हम शायद कहने की कोशिश करेंगे फिर से. तो ऐसा हो सकता है कि आगे फिर से बनाए. ओके सर, इस फिल्म में आप एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च कर रहे हैं, आरुषि शर्मा. तो उनके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे उनकी कास्टिंग हुई और कौन सा आपने उनका काम देखा इसके पहले? आरुषि के साथ मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब एक दफ़ा वो खुद सामने आ जाए ना, तब उनकी उपस्थिति में ये सवाल का जवाब मैं अगर दूंगा तो ज़्यादा मुनासिब होगा. बट मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को नोट किया, और उम्मीद है कि वो आपको और सबको, सारी जनता को बहुत पसंद आएंगी. योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कार्तिक और सारा दोनों से, पहले सारा से पूछ लेता हूँ. सारा, सबसे पहले आपने केदारनाथ से अपना डेब्यू किया. उस वक्त काफ़ी चर्चे थी कि सैफ अली खान की बेटी डेब्यू कर रही है, बट सिम्बा के बाद अपने ऊपर से आपने ये टैग हटवा लिया है, आप इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुकी हैं. तो कितना मुश्किल था खुद को इतना बड़ा ब्रांड बनाना आपके लिए? सर ऑनेस्टली मैं अभी भी सैफ अली खान की बच्ची हूँ और वो नहीं बदला. और ये टैग ऐसा टैग है दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. तो अगर वो रहे भी तो ठीक है, लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है. और उम्मीद है कि मुझे मौके दिए जाएंगे जहाँ मैं ये साबित कर पाऊँ और कर सकूँ, और इतना ही है. कार्तिक, आपसे ये सवाल था. जी सर. हाँ. एक टाइम था जब रणवीर सिंह ने के इवेंट में आपको सारा अली खान से दोस्ती करवाई थी, हैंडशेक करवा के. और हाँ. एक आज टाइम है जब आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि फिल्म तक आ गई और फिल्म में भी दिख रही है बॉन्डिंग. तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? एक बार और बोलो. एक बार और अच्छे से बोलो. एक बार और बोलो. फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है. फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है. तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी? कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं? अच्छा, किस चीज का? दोस्ती जो करवाई थी रणवीर सिंह ने आपकी, हमारी बॉन्डिंग का. हाँ, बहुत अच्छा बॉन्ड है. बहुत. नहीं, रणवीर सिंह को कितना क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी आपकी? बहुत अच्छे से दोस्ती करवाई थी इनफैक्ट. और सही है. रणवीर जैसे जिस तरीके से हैं, बहुत खुले से हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को वहाँ पे मिलवाया था, हम लोगों के बहुत मीम्स बने थे साथ में. एंड आई रियली एम ग्लैड दैट रणवीर ने हम दोनों
की जोड़ी बनाई, हम दोनों को मिलवाया, एंड देन हम लोग यहाँ पे आ गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक सर मैं हमेशा अटक जाता हूँ सर ऐसे सवालों में, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ तक जाऊँ मैं। नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कुछ भी है ना सब रणवीर की वजह हाँ, जो कुछ भी है सब, हाँ। सर को बुरा लग गया कहीं ना मैं कहीं। यही बोलने वाली थी कि इम्तियाज सर मैं सच बोल में रहा था फिर- रणवीर का क्या है, लव स्टोरी तो मैंने बनाई है, हो क्या रहा है यहाँ? Hi Sarah, hi. Sarah, Yeah. you're Hunter. Hi. Sarah, in your first film, you have romance with Sushant Singh. Yes. Second was Ranveer. Yes. Then it is Karthik. Yes. Who is the next actor you're going to romance in your next film? Varun. Varun is also That's there. already been announced Sorry. in the middle of shooting. Varun is also like on the list. So Yes. who's next? लव आज की बात कर लेते हैं. I am now romancing Karthik in Love Aajkal, and that is what matters, and that's what we are here to talk about. Hi Sarah, hi. First of all, congratulations, काफी खास ट्रेलर नजर आ रहा है और Thank आप you. दोनों की केमिस्ट्री काफी Thank खास you. नजर आ रहा है. Thank सारा अगर देखा जाए तो हमेशा हमने देखा है पेपराजी की बात हो या ऑडियंस की बात हो, आपके साथ ही अनन्या ने डेब्यू किया था, जानवी ने डेब्यू किया था. हमेशा ऑडियंस आप तीनों को कंपेयर करती है, जिसमें सबसे आगे आप नजर आती हैं. कहीं ना कहीं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी बढ़ जाती है कि हमें किस तरह का आप देखती हैं किस तरह इस बातों को? देखिए, मुझे लगता है that all three of us are very young girls, and you know, it's I understand why it happens. मैं समझती हूँ क्यों होता है, लेकिन किसी भी इंसान को एक इंसान से कंपेयर करना it just doesn't make sense. I think हम तीनों बहुत अलग भी हैं as people, as actors in general. तो I don't see the point in comparing or anything like that. I mean, and they're both my contemporaries. They're both friends of mine, and I wish them the best, and I hope they are wishing me the best right now as well. So. हाय दिनेश, यहाँ पे आपसे एक सवाल था कि लव आजकल को पूरे 10 साल हो गए हैं और अब ये जो जर्नी है, जो सफ़र है वो लव आजकल 2 के साथ चल रहा है. एज ए प्रोड्यूसर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की मेमोरीज आप दोनों शेयर करते हैं? तो एक बार मैं और इम्तियाज सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए थे और शूट का ऑफ था और ये पिक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी तभी. तो इम्तियाज आप बताओ, अब मैंने आपको क्या बोला था? पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर दिनेश विजन बना रहे थे. सैन फ्रांसिस्को में एक ब्रेक डे था, तो हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे कहीं पर बैठ करके, बहुत वेल डिजर्व ब्रेक था. और हम लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे कहीं पे स्क्वायर में, अच्छा माहौल था. कॉफ़ी पीते पीते दीनू की आंखों में आंसू आ गया. वो आंसुओं से रोने लगा. ऐसे मुझे लगा कि क्या हो गया यार, तू क्या हो गया? बोलता है कि अगर ये फिल्म नहीं चली ना सर, तो आप जहां भी होगे इस दुनिया में और सैफ जहां भी छुपे मुझसे इस दुनिया में, आई विल लुक फॉर यू, आई विल फाइंड यू एंड आई विल बीट यू अप. क्योंकि आप लोगों ने जिद करके ये फिल्म बनाई. ये सेम चीज में अभी तुम दोनों को बोल रहा हूँ. अब मेरा सवाल कार्तिक, अब मैं पूछूं? जी सर. हाँ जी सर, सॉरी. कहाँ पे? देखिए इधर देखिए, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ जाइए. आवाज तो सर, आवाज और एक टकला नजर आ रहा होगा. सुनिए मेरा क्या? टक. ठीक है, चालू करें. मेरा सवाल आप दोनों से है, क्योंकि लव आजकल इतनी कामयाब फिल्म रही है, इम्तियाज साहब को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, मोहब्बत को शायद वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं. जी. क्या आप दोनों का यकीनन कंपैरिजन होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी इतनी कामयाब फिल्म रही है. आपका सैफ साहब से होगा और आपका दीपिका से होगा. What do you have to say about that? You know, there'll be a comparison whenever the film get released. दीपिका, I feel that अभी किसी और कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो आई थिंक कंपैरिजन इज समथिंग कि चलता रहता है और शायद चलता रहेगा. बट आई डोंट थिंक कि ये लव आजकल 2 है. ये हम सीक्वल नहीं बना रहे हैं. ये फिल्म प्यार आज जो है उसे दर्शाने की कोशिश कर रहा है. और इम्तियाज सर ने मेरे हिसाब से, और दीपिका ने, और मेरे फादर ने, और दीनू ने 11 साल पहले बहुत ही अच्छे से दर्शाया था कि लव तब क्या था. अब आज हम लोगों ने वही कोशिश की है, तो शायद कंपैरिजन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक सीक्वल बना रहे हैं. ना मुझे लगता है कि कार्तिक ने मेरे फादर का किरदार निभाने की कोशिश की है, या मैंने दीपिका का किरदार निभाने की कोशिश की, क्या किरदार निभाने की कोशिश की है. नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक दैट वी आर ऑल इंडिविजुअली टेलिंग अ न्यू स्टोरी दैट इज with different characters.
हमारे कैरेक्टर्स अलग हैं, हमारी कहानी अलग है, प्यार आज हम सब के हिसाब से अलग है. So I think we've all come together to showcase that. But I mean, little bit of comparisons that are not really necessary will, I guess, continue because that's what thrives here. So. कार्तिक आप बोलेंगे कंपैरिजन? जी सर, मैं तो कौन सा गाना है ये? वास्ते वो बज रहा है. हाँ. मैं गाऊंगी नहीं. जी. सर, जैसा सारा ने बोला कि ये कम्प्लीटली नई फिल्म है और ये उन कैरेक्टर्स को लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे. लव आज और कल का जो टाइम फ्रेम भी है, इसका 1990 या 2020 का कंपैरिजन ज़्यादा होगा कि रैदर देन एक्टर्स का कंपैरिजन. मेरे को ऐसा लगता है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, कम्प्लीटली डिफरेंट साइड है, कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और जिस तरीके से दर्शाया गया है, आई डोंट थिंक सो इसका कुछ एक थीमेटिकली एक चीज़ हो सकती है कि वो आज और कल, जो कि लव आजकल हमेशा रहेगी. सर कल को एक और लव आजकल जब हमारे साथ फिर से बनाएंगे तो उसमें वापस से ऐसे कर पाएंगे 2030 2000, तो वो चीज़ हो पाएगी. लेकिन वैसा कंपैरिजन रॉन्ग है. आई थिंक वी कैन नेवर रेप्लिकेट व्हाट दे हैड डन इन लव आजकल एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म, तो वो कंपैरिजन तो ना ही हो तो अच्छा है. सर आप इम्तियाज सर से मिले हैं ना, आपको लगता है हम ज्ञान देंगे उन्हें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी पिक्चर में भी प्रॉब्लम हो जाएगी. जरूरी है. नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सर ने ही ज्ञान दिया है हमें, ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई नहीं सर. We'll just take two आखिरी सवाल. Hi Imtiaz, on your right. Hi, Faridun from Bollywood Hungama. Fantastic promo and music, everything looks good. My question to you is that you've always liked to explore various aspects of love. It's very obvious that you also have the commercial parameters that you have to adhere to. At the same time, you always strive for some sort of spiritual, maybe or Sufi sort of love, which is always reflective, maybe in the way you portray the nature and all the ingredients that you incorporate. What is the relevance of love for you? How important is it for you in your personal space? You know, honestly, Faridun, I'm looking for that answer. I don't know what the relevance of love is, but I feel that everything in the universe somehow moves because of it. And थोड़ा सा philosophical हो रहा है, but मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो if it's a man and a woman in love, it is still a zariya for the same love that turns the universe around. So, but I'm also exploring these things. Like in this particular, like I'm at a certain age. But when I was younger, or when these guys are younger, or my daughter is here, she's even younger, I feel that everybody goes through the same cycle. I feel that they have the same questions in their minds. And, you know, you have knowledge of how it was when you were at that age, but it's not so easy to just say it and for somebody to just follow it and correct your life. You know, in some sort of a way, I feel that this is my way of saying to the younger generation what I understand about this question that you asked me at this age. Not that I can tell them what to do, but I can just show them who I am. So basically, what I'm also trying to say is that there's a lot of courage in the way you just work on your films, because you have to keep the commercial elements into account. At the same time, you want to express that element of maybe abstractness. There is imagery. You convey through mere imagery a lot of things, which for some may be abstract at times, but you just bring in the commercial element as well. Where do you get that courage from? And why is it important for you to just say something artistic or poetic? Because that is the reason I'm here. You know, if I've come from Jamshedpur through Delhi to Bombay to make movies, that's the thing that has brought me here. And of course, I'm lucky also that I come from, मैं ऐसे समाज से आता हूँ, मेरे जो tastes हैं वो काफ़ी common है. तो मुझे लगता है कि ये जो आप कमर्शियल कह रहे हो ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेरे अंदर वो चीज़ है. तो मगर
अच्छी फिल्म बनाऊं या अच्छे से कहानी कहूं, उस वजह से मैं आया हूं, तो अभी भी वही कोशिश कर रहा हूं यार। दिनेश सर, संजय सर, मैं क्लोजिंग सेरेमनी आपसे करूंगा। दिनेश सर, उधर एक सवाल लेके मेरा I'll come आपसे एक back to you. सवाल है कि लास्ट ईयर Welcome to you. your collaboration with Geo Studios has produced films hits like Bala and even Made in China, and this year there is a balance between content driven and a star or you know, so what do you want to say about this collaboration and how are you looking forward to it in this year? I think the collaboration's been very special because nothing succeeds like success. And I think what this Jyoti is just somebody who's a friend, who's like a mentor, she never comes for anything, but she's been the backbone of most of our films. So I think I'd like to just say that, you know, she's the most special part about this collaboration. And obviously there's a very large team on my left and right. It's got Windows Seat, it's got Reliance, it's got Maddox team, it's got you, and they all work really hard. We are up here. So big round of applause to the whole team, guys. Well done on this one. Sarah. Yes, and Sarah, I also want to say one जी, thing. please. Amit is here and Irshad was here. Has he run away? But I must say that I'm really in memory of the unit that has made this film and that you will see. And at this moment, while they are not there, we remember them. Thank you so much. One last question, Ji. आप बोलो पहले, इस बार आप पहले बोल दो। देखिए मेरे लिए इनफैक्ट क्योंकि मैं वीर के अलावा रघु भी एक कैरेक्टर है जो कल वो भी प्ले कर रहा था, काफ़ी चीज़ों पे मैं सर के साथ बैठा था। इनफैक्ट सर ने बहुत चीज़ें समझाई थी कि कैसे क्या अप्रोच क्या करना है। वीर थोड़ा सा सिंपल होते हुए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर सामने से लगता है, अंदर से सिंपल होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था वीर। कहीं ना कहीं रघु भी डिफरेंशिएट करना बहुत सटल तरीक़ों से करना था, और जो आई थिंक बहुत सारी पहले दिन जब हम लोग वीर से रघु के शूट पे शिफ्ट हुए थे और वो बहुत एक ही दिन में किया था हमने, आई थिंक वी हैड टू स्टॉप दैट डे एंड कि हमने डिसाइड किया था कि नहीं, ये रघु का जो किरदार है ये थोड़ा सा टाइम लेके आएगा और फिर करेंगे वापस से। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये कभी भी ऐसा प्रोसेस ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे इतना ज़्यादा, और अगेन 2 कैरेक्टर्स पहली बार कर रहा था तो मेरे लिए वो भी एक चैलेंजिंग चीज़ हो गई थी। सो मेरे लिए दोनों कहीं ना कहीं अलग है, येट कुछ मेरी भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो उनके अंदर आप देखेंगे। उनको मिक्स करते हुए ये दोनों मेरे लिए बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं। वीर बहुत ही ऑनेस्ट सा कैरेक्टर है, मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ बहुत तो वो एक चीज़ है तो सो दैट इज़ वन थिंग विच आई रिलेट टू। अजी बस ये कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे ना, साड़ी भी बल्ले बल्ली होगी। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे हिसाब से ज़ोई represents you know youth today, और उसका जो किरदार है वो अपने करियर से बहुत प्रभावित होता है। आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो बोलती है कि मेरे ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा करियर है, which is something that I totally agree with। तो वो एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है मेरे और ज़ोई में। और बाकी आप देख के आप मुझे खुद ही बता दीजिए। देखेंगे वैलेंटाइंस डे पे, we'll go and watch this movie before we have the final photo op. Then you'll know. पाजी मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ मैं। सिर्फ इन तीनों में है और किसी में नहीं है। तो अब मैं बोल दूंगी कि प्रोफेशनल है तो रणवीर आके मुझे मार देगा, तो ये तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि अदर देन व्हाट ओनली 3 ऑफ देम हैव एंड नोबडी एल्स हैज। तो रणवीर भी ना, हाँ ओके, देन वी डोंट हैव टू बी ऑफेंसिव। आई थिंक दैट ऑन ऑल 4 फिल्म्स I think that all 4 co-actors I've worked with have been extremely helpful and very supportive, and they're all great actors in their own right, but every day on set they've been very motivating, and they haven't made me feel like, you know, मैंने एक ही फिल्म की है या 3 ही फिल्म की है, इन्होंने बहुत किए हैं, you know। रणवीर is like
Ranveer. But I haven't been made to feel like that by any of them. So I think that would be a similarity. Thanks. ये देखो मिल गया शॉट मिल गया यहाँ Relax. पे दिनेश सर बिफोर वी रैप अप यू नो वी हैव इंटरैक्टेड ऑन अ कपल ऑफ ओकेजन्स यहाँ पे अलग-अलग फिल्मों की बातें करी हैं हमने तुम्हें पैर छुआने हैं कमाल हो रहा है so I know but sir पिछले 10 साल में how has the scenario for you as a producer changed like आपने क्या-क्या changes देखे अपने आप में and इम्तियाज सर में भी filmmaking has become democratic if you've got a good story it works come what may right and we are all classic examples of all of that you know so if you have a story to tell and you have a voice you get to make it today and there's not a better time for films and as a producer इम्तियाज सर में क्या-क्या changes आए सर Imtiaz asked me how have you changed in 10 years I think he's become younger. Become a better person. He's become no, you haven't. He's become he's become younger and sexier. What do you agree? I totally agree. Age is suiting him. बनता है. So this Valentine's Day we're going to go and watch Love Aajkal. It's time for the final photo op. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you guys very were much. Superb. Thank you. And this Thank was amazing. Group thingy and then solos we'll do. Alright, so it's time to invite on stage the producers, ladies and gentlemen. Okay, your producer साहब, your director साहब, both of them are here. लेकिन मुझे पहले बताएं नीचे मीडिया ने देखा और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे यहाँ वहाँ it's trending and how what do you have to say about the response जो हमने नीचे देखा है? नीचे जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिस्पांस मिला है आप सबकी वजह से दिस इज नॉट डन यार कार्तिक वाले कहाँ हैं और सार्थक वाले कहाँ हैं कार्तिक आई थिंक ये यहीं से आ रहा है सबसे ज्यादा So yeah, this is what do you have to say, Karthik and Sara? इसके बारे में क्या कहेंगे? इनका प्यार नहीं खत्म हो रहा उनका। पीछे ही बोला था और मैं फिर से बोलने वाली हूँ कि आप लोगों ने जो ये साथी टी-शर्ट्स पहने हुए हैं, आप लोगों ने बिना हमें स्क्रीन पर देखे हुए इतना प्यार दिया है. We're not taking the pressure of hoping to live up to it, but we're really going to try. And thank you so much. Thank you for all the love, and I hope you accept the film the way you've accepted the trailer. बहुत अच्छा लगा। कुछ नारेबाजी चालू है, लगे जा रहे हैं हम लोग। You know, this is the only film जिसके ट्रेलर के आने से पहले कई सारे ट्रेलर्स ऑलरेडी घूम रहे थे, फर्स्ट लुक से लेके लोगों ने बनाए थे। How did you all like the first look of the movie? तो ट्रेलर के लिए तो और ज्यादा हल्ला होना चाहिए ना। How did we all like the trailer? सुपर हिट है, चलो चलते हैं, सुपर हिट है सर, खत्म, मतलब कमाल। 100 stars, guys, come on. अच्छा, how many of you are all set to break dance? I mean dance. So एक बार करके दिखाओ, you guys sing आहू आहू and do it for us ना. 1, 2, 3, 4. आहू आहू आहू. आहू आहू आहू. आहू 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 आहू. ये क्या हो गया? आप लोग को नहीं समझा? You didn't like it? खुशी की बात है, you know, दिखाना है थोड़ा. So let's do it one more time with these fellows. 1, 2, 3, only for them, and you have to do something here. I don't know. 1, 2, 3. अरे एक बार हम दोनों ने ना एक भी बार अभी तक ट्रेलर नहीं देखा। स्पेशली सात्विक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखा। तो वो बनता है, तो एक बार और ट्रेलर देखेंगे। हो जाए बनता है। कब यार जलवे खत्म। Yes, presenting Love. क्यों पीछा कर रहे हो तुम मेरा? मैं आज के बाद आपका पीछा नहीं करूँगा। मैंने कहा तुम्हें, तुम मेरा पीछा मत करो। नहीं। तुम्हें मालूम है तुम कब
आउट कर देंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे कि कभी तुम्हारे और करियर के बीच में बैलेंस नहीं। तुम लड़कों से फिर से पूछो। अच्छा कर लो। तुम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हो? आप तुम तुम कार्तिक से अट्रैक्ट नहीं होती? मुझे पेट्रोल पीना भी पसंद है। आना तो पूरी तरह आना, वरना आना ही मत। जब आप लोग नहीं आए थे तब जोश था, लेकिन आप लोग के साथ ट्रेलर देखने में देखो वन सम अदर लेवल आया। क्या कह रहे हो? So before we wrap up, it's time to wrap up. और जैसा मैंने कहा था, बिना टिकट देके कैसे बोलेगा लड़की से प्रॉब्लम है? अब ये नहीं बोल सकता ना प्रॉब्लम है। अब लड़की है कैसे बोलेगा? वो नहीं बोल सकता। कैसे बोलेगा? नहीं बुरा मान जाएगा। Alright, so जाते जाते we'll do one thing. मैंने सोचा था, उनसे कहा भी था, we'll click a selfie, ठीक है? तो यहाँ से वेलकम वेलकम। Where is the phone? Karthik's phone है? कुछ नहीं, एक सेल्फी खींच रहे थे सबके साथ। वो पका ले ले। चिंटू जी बचा दिए। कर लो यार, पोज कर लो, सब लोग साथ में आ जाओ। Thank you so much, you guys were superb. Give yourselves a big round of applause. That's all we have to do. That's all we have for you. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys were superb. Love Aajkal releases this Valentine's Day.
जब एंट्री में काय ते असं हात तुला काय भेटणार एक तरीके से ठीक है हमारी तरह से बात करता हूँ
एक मिनट सर कम ऑन गाइस पीछे go down एक मिनट मोबाइल चलो भागो चल स्टेप्स पहले ये क्लियर होने दो उसके बाद ऊपर ये Gentlemen, come on, make some noise. Welcome, Dinu sir, and congratulations. Thank you very much. We were talking about nostalgia. तो क्या अभी मतलब 9 साल बाद दुनिया घूम के वैसी आ गई है? अभी बाहर तो वही बातें हो रही थी, लेकिन good afternoon everybody. We were all, when I was driving here, I was sitting and I was talking to Imtiaz on the way. थोड़े तो बुड्ढे भी हो गए, मतलब 10 साल हो गए. It's a very nostalgic feeling because this was a film which was monumental in my career. You know, I had the opportunity of working with him, and it was a beautiful journey with lots of funny stories. And 10 years later to be here with Irshad Bhai, with everyone, there were so many, Amitabh, Sharda. It's been a journey because it was a monumental film for us, kind of a foundation of our company. And I'm just so happy we could make this again. You know, it's just beautiful. And also I found a friend, and we've stayed friends for a very long time. We did another one, Cocktail. And now I'm happy we've come back with this. And I think this is actually Imtiaz Ali 2.0 also, you know. I think he's taken a whole bunch of young people with him. I think Ida has a very strong role to play in this. And thank you for being there. So I think this, for anything, this is Love Aajkal 10 years later. You know, Imtiaz's take on how love has changed. So without any further ado, the captain of this ship, Imtiaz Ali. Whoa, come on, make some noise, ladies and gentlemen. थोड़ा और noise, यार. Noise. Wow. That's the kind of welcome we're talking about. Yes. Hi. Good afternoon. ट्रेलर कैसा लगा? अभी तो अच्छा ही बोलोगे, बाद में बोलना. मगर ट्रेलर बनाया दीनू ने, उसकी बुराई करनी है तो कर सकते हैं. बट मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके यार. मतलब आई फेल्ट वेरी लाइक द होल स्कीम थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है, फिर इट गेट्स थिकर एंड थिकर. सो वेल डन. ही इज मेड द ट्रेलर. सर मटेरियल तो आपका ही है सर, लाइक लास्ट टाइम. So very happy to be here. I have nothing, no speech to make. It's good to be among friends. Maybe it's because we've been in the industry for so long that we include press also in the group of friends now. But it's great to see so many of you. And very happy. I hope that you like this film. We've tried to speak the truth over here. And अभी क्या करना है? अभी उन्हें बुलाते हैं जिन्होंने ये जर्नी पॉसिबल की और इजी कर दी. हाँ, शिवाशीष, प्लीज कम अप ऑन स्टेज. From Reliance Entertainment, Shivashish Sarkar. Some serious fan following over here, sir. This also आपको BGM भी मिला है सर एंट्री पे. This also lays the foundation for Window Seat Films, which is a company that Reliance and I have
we have come together for. So this is again a monumental film. Every Love Aajkal, I think, is going to be a monumental film. So this is for us, for Window Seat Films, a very monumental film. So Shivashish. I think this kind of platforms are always for the creators. For me, my experience is that I'm lucky that I met a great, genuine human being in Imtiaz in last 1.5 years of journey. And film to bante jayega, relationship chalte rahega, but at the end of the day, in this whole journey, I learned a lot with Imtiaz in terms of the good things which a value system which a human being should have, and that's my journey in the last 1.5 years. And with Dinu in last 3 months, I probably have learned how to make things happen. In last 25 years, I have not learned a lot of stuff, but in last 3 months, 4 months, when I'm working closely with Dinu, I learned that whatever I've learned, there are more things can happen, and how to make things happen, one should take a class Sir, from him. इस picture में एक We should also, I'm also indebted in this journey that I should also, thanks to Jio Cinema, Jio Studio, Jyoti, who is not here today, but they have supported us a lot in this journey. And of course, Sony, Pen Marudhar, all who have come into this whole journey. Everyone's waiting for, and call your Zoe and... Yes. Yeah, guys. Should we... So, हाँ, मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएंगे? अच्छा, मैं बुलाऊंगा तो आएंगे. So, can we have here Miss Zoe Chauhan? Whoa! तो थोड़ा तो और हल्ला बनता है यार. Come on, Too people. much. Ladies and gentlemen. Too much glamour. She was also there on the shoot of the first one, huh? And can we... Hello guys. और क्या बोलूं? हाय, आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? ओके, होपफुली फिल्म भी आप लोगों को अच्छी लगेगी. आई एम सॉरी, मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे पता नहीं है मैं और क्या बोलूं. बट थैंक यू फॉर कमिंग एंड लाइकिंग द ट्रेलर एंड ओके. All right, to make things even better, on stage can we have Veer? Woo! सर क्या बोलूँ मैं इतना नर्वस किसी फिल्म के पहले नहीं हुआ हूँ, किसी फिल्म के ट्रेलर के पहले नहीं हुआ हूँ, किसी के बाजू में खड़े होके नहीं हुआ हूँ. अच्छा, just a sec. Can we all settle down, please? या वो गिर जाएंगे वहाँ पे. अरे सर, ऐसी दीवानगी नहीं देखी कहीं, बाकी सब सही है. छोटू नहीं यार. क्या कर रहा है? We'll just settle down. It's okay. कोई नहीं, सब अच्छा है. ट्रेलर कैसा लगा? क्या कितने नंबर? 1. कूल है, बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. आई थिंक हम बार बार आके सब यही पूछ रहे हैं सबसे कि ट्रेलर कैसा लगा. सुपर हिट. आई एम जस्ट आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स. आई मीन दिस इज द टीम एंड जिसके साथ इट्स लाइक अ ड्रीम टीम. इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर. एंड ये एक्सेप्टेंस स्पीच जैसी हो रही है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से चालू करूँ. So I'll hand over the mic to you, sir. आप ही बताइए कि I think you have the mic, sir. We have to say is in the film, and I hope everybody likes it. So before we take their questions, एक चीज जो जानना चाहते हैं, and everybody wants to know about it, that is the first look. ये बड़ा casual सा है सर, और उसके बावजूद ऐसा दिल पे लगता है सर. What do you have to say? कहाँ से आए और किसका आइडिया था? This shot. Actually, this is a very interesting thing. वाह. आप लोगों ने अगर notice किया होगा, ट्रेलर का जो last shot है वो भी यही है. Right. और ये जो और पोस्टर बनाया है राहुल नंदा ने, और ट्रेलर दीनू की सुपरविजन में बना है, दीनू ने बनाया है.
So इन दोनों ने आपस में बात नहीं की थी. It just happened coincidentally that Rahul also chose that particular frame to make the poster, and Dinu also chose the same frame to end the trailer. So yeah, it's I think a very interesting take at the film. Yes. And Frenzy तो सर ये देख लें आप यहाँ क्या हो रहा है, और let me tell you this is the only film officially मैं कह सकता हूँ या unofficially जिसका ट्रेलर आने से पहले हजारों ट्रेलर्स हैं और करोड़ों में व्यूज गए हुए हैं. मतलब हर किसी ने ट्रेलर बनाया इस पहले लुक के ऊपर. So congratulations to you guys for that. इसका ट्रेलर ऑलरेडी घूम रहा है, इतने सारे घूम रहे हैं, but this is the one, ladies and gentlemen, जिसको अब आपने प्यार देना है. So what we'll do is we'll have a quick photo op and then we'll take the questions. So can we all take the mics, please? Thank you. All right, we're good to go. Here we go. So, can we have the bar stools, please? Congratulations. Thank This you is so Simran Singh here from First Post. सारा मेरा सवाल पहले आपसे है. थोड़ा आपके लेफ्ट में देखिए. हाँ जी. यहाँ पे. Hi. हाँ जी. So first of all, congratulations to you and the team Thank for the you. fantastic trailer. मेरा सवाल आपसे ये है. It's been almost a year. हाँ, more than a actually, year. So with a yes. director who is an acclaimed director and with the film जिसके साथ, you know, you have a connection. Your father has done the prequel. Yes. So what do you want to say about this whole scenario, whole feeling? I think that it's genuinely been a dream come true to work with Imtiaz sir. I have really always genuinely, I mean, it's weird to, you know, look at you and be saying this because I've said this to you one-on-one on set in a much more real atmosphere. But I'm going to say it again and mean it as much. It's been a dream come true to work with Imtiaz sir. I think that he is such a warm person, such a gentle person, such a nurturing person. And he's such a clear director. He knows exactly what he wants. And he knows, I mean, hopefully, in my case at least, exactly how to get you there. You know, you'll be doing scenes and you'll be feeling exactly what you should be feeling right before the scene, you know. And I have always, you know, watched all his work. And I still, you know, the reason I'm stammering a little bit and saying, you know, again and again, is because I can't believe that I have had the opportunity to work with him. It's been so special. It's been so wonderful. I know that they've... No, really, sir, I don't know what to say. I still remember the day that I met you in Delhi. And I was like, you know, I'm feeling really bad and like messed up because of the scene that we were shooting the previous day. And you said, that's exactly how you should be feeling. I was a little confused. I was like, that's like borderline sadistic. Why would he say that to me? And then I realized that maybe that is it, you know. He makes you feel what you should feel and that feeling stays. कार्तिक That's भाई, what we did. मेरा आपसे सवाल ये है कि it's been a long journey, मतलब from a Panchnama boy to Sonu, then Chintu Tyagi, and now Love Aajkal. So what do you want to say about the whole journey? You have now a director like Imtiaz, so what do you want to say about it? जी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ. जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा रहा है जब से हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी, फर्स्ट मीटिंग जब हम मिले थे, जब पहली बार मुझे एक्चुअली कॉल आया था एंड सर ने बोला था कि हेलो इज दिस कार्तिक, दिस इज़ इम्तियाज़ अली. एंड तो मुझे याद है मैं एक्चुअली उस टाइम लुक्का छुपी की शूट कर रहा था, तब मुझे कॉल आया था. और मैंने अपने आप को वैनिटी में बंद कर लिया था और मैंने बोला था कि मैं वॉशरूम चला गया हूँ और जितनी देर तक ये कॉल चलता रहेगा उतना वॉशरूम में बैठा हूँ. तो मैंने बहाना किया था सेट में ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे. और हमने करीब 45 मिनट शायद से उस फ़ोन कॉल में, फर्स्ट फ़ोन कॉल में बात की थी. ये खबर मेरे पास नहीं थी. ये खबर नहीं आई थी क्योंकि वो ऐसा अपसेट स्टमक, बट this was happening then. And so I think मतलब it's been a wonderful journey. मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. जब सर ने मेरे को एक्चुअली, हम लोग जब बात भी किए थे तो हमने किसी और चीज़ के लिए बात की थी. Eventually Love Aajkal happened and it's like a dream. मैं मतलब सपना जी रहा हूँ वैसा मुझे लग रहा है.
जब वी मेट रॉकस्टार, मतलब हम देखते देखते दोस्तों में या कॉलेज में जाते हुए सबकी फेवरेट मूवीज़ में से कुछ रही हैं. एंड जब पोस्टर भी जब मैंने पहली बार अपना ये देखा, हम दोनों इस पोस्टर में थे, एंड अ फिल्म बाय इम्तियाज़ अली, एंड यू नो, तो वो मैंने सर को मैसेज भी किया था, बोला भी था, मैं 3 घंटे तक 2 घंटे तक मैं बस देख रहा था और फ़ोन को देख रहा था. ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत खुश हूँ. इट्स अ कंप्लीट सर्कल. एंड सर ने जिस तरीके से मुझे वीर और रघु के कैरेक्टर में देखा, एंड जितना इन्होंने हम सबको वाइल डायरेक्टिंग, आई थिंक ही इज़ कम्प्लीटली, फॉर मी ही इज़ कम्प्लीटली चेंज मी एज एन एक्टर. में भी जैसा मेरा थॉट प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है इनसे बात करके, इनसे समझ के. एंड इनका तरीका भी एकदम इतना आसान सा होता है कि हम बस बात करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरफ लेते जा रहे हैं हमें. तो वो एक प्रोसेस में हमेशा से मज़ा आया. एंड मैं भी स्टैमर कर रहा हूँ सारा. आपने भी स्पीच दे दी हमारी हाँ, तरह, मैंने भी लेकिन- स्पीच दे दी, लेकिन बहुत इतनी अच्छी नहीं दी. hello. But I'm glad. I'm Sara really ji. happy. I'm really happy. सारा जी एंड कार्तिक जी, जी सर. क्या बात कर रहे हैं? जी सर. जी 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 जी. सर जब इन्होंने बोला था ना कैमरे पे कि जब इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बोला था, उस टाइम मुझे इन पे क्रश आ गया था उस टाइम से. तो फिर तभी मैं फिर शर्माने लगा था हर बार से. हाँ जी. अरे लेकिन मैं क्या जवाब दूं, आप बताइए क्या जवाब दूं. जब भी आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते या इनसे ऐसे सवाल पूछते तो जवाब क्या दें. इन्होंने तो सीधे बोल दिया था, मैं वहां पे अटक गया था कि मैं हाँ बोलूं या तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी सारा. आई डोंट नो सर, आई एम सो सॉरी. कहाँ पे टॉपिक जा रहा है? हेलो. हाँ, हेलो सर. इम्तियाज सर. सारा जी. हेलो. जी जी. इनकी पिछली ट्रेलर लॉन्च पे भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था. ये क्या है कार्तिक? What's going on? Is this love आजकल? Sara, you know it all. Come on. So don't. Come on. No, she knows it. She's a good actor. Thanks. That's why I'm That's the saying. first time he said that to me. देखिए वहाँ पे कितने सार्थक फैंस हैं जो बाहर सब हैं, तो वो किसी रीजन की वजह से होंगे. एंड आई एम श्योर ये कल नहीं लव आज है. No, listen, I must say that, you know, whenever I hear this Sarthik thing, I just have to say कि आप सही बोल रहे हो. मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म को देखने से पहले किसी भी जोड़ी को इतना प्यार मिला है. So I am genuinely more than anything just grateful to the audiences for giving us so much love and accepting us as a pair even before seeing us on screen. And I can only hope कि जब आप हम लोगों को स्क्रीन पर देखोगे तो आप लोगों को सार्थक से और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा और वीर और जोई से प्यार हो जाएगा, because that is really what it's about. सारा जी एंड कार्तिक जी. इम्तियाज सर. Hi. Sara ji. Imtiaz sir, this is Keyul from Cinestan.com. जी. पंगे करवा के मानेंगे संजय जी आज हैं. आज शादी कर ली. उसको पेट्रोल पीने का दिल करता है. हेलो इम्तियाज ओके, सर. सारा जी एंड कार्तिक जी, आपके लेफ्ट में हाय. जी सर. जी. ऐसे अरे. इस बार वैलेंटाइन डे के मौके पर आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप हमें कुछ बता सकें. सवाल है आप लोग क्या करने वाले हैं? लव आजकल देखने वाले हैं. कार्तिक जी. जी. ये देखना है, लव आजकल देखना है, वैलेंटाइन डे के दिन, और क्या करना है? कार्तिक जी आप हाँ क्या करने वाले हैं इस बार? मैं नहीं आएंगे, इनसे क्या पूछ रहे हो ऐसे? अच्छा. नहीं आओगे? साथ में और नहीं तो क्या, हम दोनों डेट पे जाएंगे. हमारी पिक्चर है हाँ. कि और किसके साथ चले जाओगे? हद है यार. नहीं हद नहीं है नहीं यार. नहीं 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 नहीं, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे उस रात को. और ये देखिए आपको रिएक्शन मिल गया. ये मिल गया.
हम दोनों लव आजकल देखेंगे उस रात को. It's a date night. 14th Feb या 13th Feb. दोनों रात को हम सेम मूवी देखेंगे. एंड इम्तियाज- इम्तियाज जी एंड दिनेश जी, आप लोगों से सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं बहुत ही जल्द दोस्ती होती है, बहुत जल्द लव हो जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है. सो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ हो. मगर जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब ये है कि परिभाषा बदलती रहती है. मुझे लगता है कि the relationship as it happens now is very different from how it used to happen in the past. And मतलब प्यार की परिभाषा बदलती रहती है यार वक्त के साथ साथ. और उसी वजह से लव आजकल जो है ना वो बार बार ख्याल में आती है कि आज की लव आजकल क्या हो सकती है, कि कल की क्या हो सकती है, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो हाँ, चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग हो गई हैं, मगर जो जिस वजह से एक लड़का और एक लड़की साथ आते हैं वो कारण नहीं बदला है. तो आप हिम्मत मत हारिए. सर बिल्कुल सारा- इम्तियाज सारा- सर, मैं भी आपके लिए सेम विश करता हूँ सर. इम्तियाज सर, हाय. यहाँ आपके सामने. हाय, दिस इज केयूल फ्रॉम cinestan.com. सर मेरे आपके लिए दो सवाल है. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एवरी लव आजकल फिल्म विल बी मॉन्यूमेंटल. तो क्या इसका ये मतलब है कि आगे भी आप इसी सीरीज में फिल्म्स बनाएंगे? वेल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत फ्रेंचाइजेबल आइडिया है. आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक ही टाइटल की 2 बार फिल्में मैंने बनाई है. इस वजह से बनाई है कि 10 साल बाद मुझे लगा कि जिस बेसिस पे मैंने पहली फिल्म बनाई थी वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, नया हो चुका है, और एक नई बात उसी बात में कहने का मौका मुझे मिल रहा है. उसके बाद मुझे लगा, और दीनू और मैं बहुत बात कर रहे थे उस समय, कि इस चीज़ को आगे शायद बढ़ाया जा सकता है. अगर कुछ साल बाद लगे कि आज और कल जिस तरह से जो रिलेशनशिप का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बदल चुका है, कुछ नई बात आ चुकी है जिसमें एक नई कहानी है, तो वो हम शायद कहने की कोशिश करेंगे फिर से. तो और ऐसा सर हो इस- सकता है कि आगे फिर से बनाए. ओके सर, इस फिल्म में आप एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च कर रहे हैं, आरुषि शर्मा. तो उनके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे उनकी कास्टिंग हुई और कौन सा आपने उनका काम देखा इसके पहले? आरुषि के साथ मैंने बहुत पहले, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब एक दफ़ा वो खुद सामने आ जाए ना, तब उनकी उपस्थिति में ये सवाल का जवाब मैं अगर दूंगा तो ज़्यादा मुनासिब होगा. बट मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को नोट किया, और उम्मीद है कि वो आपको और सबको, सारी जनता को बहुत पसंद आएंगी. योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कार्तिक और सारा दोनों से, पहले सारा से पूछ लेता हूँ. सारा, सबसे पहले आपने केदारनाथ से अपना डेब्यू किया. उस वक्त काफ़ी चर्चे थी कि सैफ अली खान की बेटी डेब्यू कर रही है, बट सिम्बा के बाद अपने ऊपर से आपने ये टैग हटवा लिया है, आप इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुकी हैं. तो कितना मुश्किल था खुद को इतना बड़ा ब्रांड बनाना आपके लिए? सर ऑनेस्टली मैं अभी भी सैफ अली खान की बच्ची हूँ और वो नहीं बदला. और ये टैग ऐसा टैग है दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. तो अगर वो रहे भी तो ठीक है, लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद है कि मुझे मौके दिए जाएंगे जहाँ मैं ये साबित कर पाऊँ और कर सकूँ, और इतना ही है. कार्तिक, आपसे ये सवाल था. जी सर. हाँ. एक टाइम था जब रणवीर सिंह ने एक इवेंट में आपको सारा अली खान से दोस्ती करवाई थी, हैंडशेक करवा के. और हाँ. एक आज टाइम है जब आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि फिल्म तक आ गई और फिल्म में भी दिख रही है बॉन्डिंग. तो कितना क्रेडिट आप दिख रही रणवीर है? सिंह को देते एक हैं? बार और बोलो, दिख एक बार रही और है. अच्छे से एक बोलो बार ना. और बोलो, फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है. फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी. कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं. अच्छा, किस चीज़ का? दोस्ती जो अरे करवाई थी bonding का. रणवीर सिंह ने आपकी. हमारी बॉन्डिंग का. हाँ. बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत. नहीं, रणवीर सिंह को कितना क्रेडिट देते हैं, क्योंकि रणवीर उन्होंने ही सिंह को- दोस्ती करवाई थी आपकी. बहुत अच्छे से दोस्ती करवाई थी इनफैक्ट. और सही है. रणवीर जैसे जिस तरीके से हैं, बहुत खुले खुले से हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को वहाँ पे मिलवाया था, हम लोगों के बहुत मीम्स बने थे साथ में. एंड आई रियली एम ग्लैड दैट रणवीर ने हम दोनों
की जोड़ी बनाई, हम दोनों को मिलवाया, एंड देन हम लोग यहाँ पे आ गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक सर मैं हमेशा अटक जाता हूँ सर ऐसे सवालों में, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ तक जाऊँ मैं। नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कुछ भी है ना सब रणवीर की वजह हाँ, से। जो कुछ भी है सब, हाँ। सर को बुरा लग गया कहीं ना मैं यही बोलने वाली थी कि इम्तियाज सर मैं सोचिए, बोलने वाला था रणवीर का क्या है, लव स्टोरी तो मैंने बनाई है, हो क्या रहा है यहाँ? Hi, Sarah. Hi, hi. Sarah, your center. Hi. Sarah, in your first film, you have romance with Sushant Singh. Yes. Second was Ranveer. Yes. Then it is Karthik. Yes. Who is the next actor you are going to romance in your next film? Varun. Varun is also That's there. already been announced Sorry. in the middle of Varun. shooting. Varun is also like on the list. So Yes. who's next? लव आज की बात कर लेते हैं. I am now romancing Karthik in Love Aajkal, and that is what matters, and that's what we are here to talk about. Hi, Sarah. Hi. First of all, congratulations. काफी खास ट्रेलर नजर आ रहा है और आप दोनों की केमिस्ट्री काफी खास नजर आ रही है। सारा अगर देखा जाए तो हमेशा हमने देखा है पेपराजी की बात हो या ऑडियंस की बात हो, आपके साथ ही अनन्या ने डेब्यू किया था, जानवी ने डेब्यू किया था, हमेशा ऑडियंस आप तीनों को कंपेयर करती है जिसमें सबसे आगे आप नजर आती हैं। कहीं ना कहीं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी बढ़ जाती है कि हमें किस तरह का आप देखती हैं किस तरह इस बातों को? देखिए, मुझे लगता है that all three of us are very young girls, and you know it's I understand why it happens. मैं समझती हूँ क्यों होता है, लेकिन किसी भी इंसान को एक इंसान से कंपेयर करना it just doesn't make sense. I think हम तीनों बहुत अलग भी हैं as people, as actors in general. तो I don't see the point in comparing or anything like that. I mean, and they're both my contemporaries. They're both friends of mine, and I wish them the best, and I hope they are wishing me the best right now as well. So. हाय दिनेश, यहाँ पे आपसे एक सवाल था कि लव आजकल को पूरे 10 साल हो गए हैं और अब ये जो जर्नी है, जो सफ़र है वो लव आजकल 2 के साथ चल रहा है। एज ए प्रोड्यूसर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की मेमोरीज आप दोनों शेयर करते हैं? तो एक बार मैं और इम्तियाज सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए थे और शूट का ऑफ था और ये पिक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी तभी। तो इम्तियाज आप बताओ, मैंने आपको क्या बोला था? पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर दिनेश विजन बना रहे थे। सैन फ्रांसिस्को में एक ब्रेक डे था, तो हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे कहीं पर बैठ करके, बहुत वेल डिजर्व ब्रेक था। और हम लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे कहीं पे स्क्वायर में, अच्छा माहौल था। कॉफ़ी पीते पीते दीनू की आंखों में आंसू आ गया, वो आंसुओं से रोने लगा। ऐसे मुझे लगा कि क्या हो गया यार, तू क्या हो गया? बोलता है कि अगर ये फिल्म नहीं चली ना सर, तो आप जहां भी होगे इस दुनिया में और सैफ जहां भी छुपे मुझसे इस दुनिया में, आई विल लुक फॉर यू, आई विल फाइंड यू एंड आई विल बीट यू अप। क्योंकि आप लोगों ने जिद करके ये फिल्म बनाई। ये सेम चीज मैं अभी तुम दोनों को बोल रहा हूँ। अब मेरा सवाल कार्तिक, अब मैं पूछूं? जी सर। हाँ जी सर, सॉरी। कहाँ पे? देखिए इधर देखिए, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ जाइए। आवाज तो सर, आवाज और एक टकला नजर आ रहा होगा। सुनिए मेरा क्या? टक, ठीक है, चालू करें। मेरा सवाल आप दोनों से है, क्योंकि लव आजकल इतनी कामयाब फिल्म रही है, इम्तियाज साहब को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, मोहब्बत को शायद वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं जी। क्या आप दोनों का यकीनन कंपैरिजन होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी इतनी कामयाब फिल्म रही है, आपका सैफ साहब से होगा और आपका दीपिका से होगा। what you have to say about that? You know, there'll be a comparison whenever the film get released. दीपिका, I feel that अभी किसी और कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो आई थिंक कंपैरिजन इज समथिंग कि चलता रहता है और शायद चलता रहेगा, बट आई डोंट थिंक कि ये लव आजकल 2 है। ये हम सीक्वल नहीं बना रहे हैं, ये फिल्म प्यार आज जो है उसे दर्शाने की कोशिश कर रहा है। और इम्तियाज सर ने मेरे हिसाब से और दीपिका ने और मेरे फादर ने और दीनू ने 11 साल पहले बहुत ही अच्छे से दर्शाया था कि लव तब क्या था। अब आज हम लोगों ने वही कोशिश की है, तो शायद कंपैरिजन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक सीक्वल बना रहे हैं। ना मुझे लगता है कि कार्तिक ने मेरे फादर का किरदार निभाने की कोशिश की है या मैंने दीपिका का किरदार निभाने की कोशिश की का किरदार निभाने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट वी आर ऑल इंडिविजुअली टेलिंग अ न्यू स्टोरी दैट इज विद डिफरेंट कैरेक्टर्स।
हमारे कैरेक्टर्स अलग हैं, हमारी कहानी अलग है, प्यार आज हम सब के हिसाब से अलग है. So I think we've all come together to showcase that. But I mean, little bit of comparisons that are not really necessary will, I guess, continue because that's what thrives here. So. कार्तिक आप बोलेंगे कंपैरिजन? जी सर, मैं तो कौन सा गाना है ये? वास्ते वो बज रहा है. हाँ, मैं गाऊंगी नहीं. सर, जैसा सारा ने बोला कि ये कम्प्लीटली नई फिल्म है और ये उन कैरेक्टर्स को लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे. लव आज और कल का जो टाइम फ्रेम भी है, इसका 1990 या 2020 का कंपैरिजन ज़्यादा होगा कि rather than एक्टर्स का कंपैरिजन. मेरे को ऐसा लगता है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, कम्प्लीटली डिफरेंट साइड है, कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और जिस तरीके से दर्शाया गया है, आई डोंट थिंक सो इसका कुछ एक थीमेटिकली एक चीज़ हो सकती है कि वो आज और कल, जो कि लव आजकल हमेशा रहेगी. सर कल को एक और लव आजकल जब हमारे साथ फिर से बनाएंगे तो उसमें वापस से ऐसे कर पाएंगे 2030 2000, तो वो चीज़ हो पाएगी. लेकिन वैसा कंपैरिजन रॉन्ग है. आई थिंक वी कैन नेवर रेप्लिकेट व्हाट दे हैड डन इन लव आजकल एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म, तो वो कंपैरिजन तो ना ही हो तो अच्छा है. सर आप इम्तियाज सर से मिले हैं ना, आपको लगता है हम ज्ञान देंगे उन्हें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी पिक्चर में भी प्रॉब्लम हो जाएगी. जरूरी है. नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. सर ने ही ज्ञान दिया है हमें. ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई नहीं सर. We'll just take two आखिरी सवाल. Hi Imtiaz, on your right. Hi, Faridun from Bollywood Hungama. Fantastic promo and music, everything looks good. My question to you is that you've always liked to explore various aspects of love. It's very obvious that you also have the commercial parameters that you have to adhere to. At the same time, you always strive for some sort of spiritual, maybe or Sufi sort of love, which is always reflective, maybe in the way you portray the nature and all the ingredients that you incorporate. What is the relevance of love for you? How important is it for you in your personal space? You know, honestly, Faridun, I'm looking for that answer. I don't know what the relevance of love is, but I feel that everything in the universe somehow moves because of it. And थोड़ा सा philosophical हो रहा है, but मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो if it's a man and a woman in love, it is still a zariya for the same love that turns the universe around. So, but I'm also exploring these things. Like in this particular, like I'm at a certain age. But when I was younger, or when these guys are younger, or my daughter is here, she's even younger, I feel that everybody goes through the same cycle. I feel that they have the same questions in their minds. And you know, you have knowledge of how it was when you were at that age, but it's not so easy to just say it and for somebody to just follow it and correct your life. You know, in some sort of a way, I feel that this is my way of saying to the younger generation what I understand about this question that you asked me at this age. Not that I can tell them what to do, but I can just show them who I am. So basically, what I'm also trying to say is that there's a lot of courage in the way you just work on your films, because you have to keep the commercial elements into account. At the same time, you want to express that element of maybe abstractness. There is imagery. You convey through mere imagery a lot of things, which for some may be abstract at times, but you just bring in the commercial element as well. Where do you get that courage from? And why is it important for you to just say something artistic or poetic? Because that is the reason I'm here. You know, if I've come from Jamshedpur through Delhi to Bombay to make movies, that's the thing that has brought me here. And of course, I'm lucky also that I come from, मैं ऐसे समाज से आता हूँ, मेरे जो टेस्ट हैं वो काफ़ी कॉमन है. तो मुझे लगता है कि ये जो आप कमर्शियल कह रहे हो ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. मेरे अंदर वो चीज़ है. तो मगर
अच्छी फिल्म बनाऊं या अच्छे से कहानी कहूं, उस वजह से मैं आया हूं, तो अभी भी वही कोशिश कर रहा हूं यार। दिनेश सर, संजय सर, मैं क्लोजिंग सेरेमनी आपसे करूंगा। दिनेश सर, उधर एक सवाल लेके मेरा I'll come आपसे एक back to you. सवाल है जी। कि last year Welcome to your collaboration with Geo Studios has produced films hits like Bala and even Made in China, and this year there is a balance between content driven and a star or you know, so what do you want to say about this collaboration and how are you looking forward to it in this year? I think the collaboration's been very special because nothing succeeds like success. And I think what this Jyoti is just somebody who's a friend, who's like a mentor, she never comes for anything, but she's been the backbone of most of our films. So I think I'd like to just say that, you know, she's the most special part about this collaboration. And obviously there's a very large team on my left and right. It's got Windows Seat, it's got Reliance, it's got Maddox team, it's got you, and they all work really hard. We are up here. So big round of applause to the whole team, guys. Well done on this one. Sarah. Yes, and Sarah, I also want to say one जी, thing. please. Amit is here and Irshad was here. Has he run away? But I must say that I'm really in memory of the unit that has made this film and that you will see. And at this moment, while they are not there, we remember them. Thank you so much. One last question, जी. आप बोलो पहले, इस बार आप पहले बोल दो। देखिए मेरे लिए इनफैक्ट क्योंकि मैं वीर के अलावा रघु भी एक कैरेक्टर है जो कल वो भी प्ले कर रहा था, काफ़ी चीज़ों पे मैं सर के साथ बैठा था। इनफैक्ट सर ने बहुत चीज़ें समझाई थी कि कैसे क्या अप्रोच क्या करना है। वीर थोड़ा सा सिंपल होते हुए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर सामने से लगता है, अंदर से सिंपल होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था वीर। कहीं ना कहीं रघु भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत सटल तरीक़ों से करना था, और जो आई थिंक बहुत सारी पहले दिन जब हम लोग वीर से रघु के शूट पे शिफ्ट हुए थे और वो बहुत एक ही दिन में किया था हमने, आई थिंक वी हैड टू स्टॉप दैट डे एंड कि हमने डिसाइड किया था कि नहीं, ये रघु का जो किरदार है ये थोड़ा सा टाइम लेके आएगा और फिर करेंगे वापस से। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये कभी भी ऐसा प्रोसेस ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे इतना ज़्यादा, और अगेन 2 कैरेक्टर्स पहली बार कर रहा था तो मेरे लिए वो भी एक चैलेंजिंग चीज़ हो गई थी। सो मेरे लिए दोनों कहीं ना कहीं अलग है, येट कुछ मेरी भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो उनके अंदर आप देखेंगे, उनको मिक्स करते हुए ये दोनों मेरे लिए बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं। वीर बहुत ही ऑनेस्ट सा कैरेक्टर है, मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ बहुत तो वो एक चीज़ है तो सो दैट इज़ वन थिंग विच आई रिलेट टू। अजी बस ये कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे ना, साड़ी भी बल्ले बल्ली होगी। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे हिसाब से ज़ोई represents you know youth today, और उसका जो किरदार है वो अपने करियर से बहुत प्रभावित होता है। आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो बोलती है कि मेरे ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा करियर है, which is something that I totally agree with। तो वो एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है मेरे और ज़ोई में। और बाकी आप देख के आप मुझे खुद ही बता दीजिए। देखेंगे वैलेंटाइंस डे पे we'll go and watch this movie before we have the final photo op। Then you'll know। पाजी मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ मैं। सिर्फ इन तीनों में है और किसी में नहीं है। तो अब मैं बोल दूंगी कि प्रोफेशनल है तो रणवीर आके मुझे मार देगा, तो ये तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि other than what only 3 of them have and nobody else has। तो रणवीर भी ना, हाँ okay, then we don't have to be offensive। I think that on all 4 films, I think that all 4 co-actors I've worked with have been extremely helpful and very supportive, and they're all great actors in their own right, but every day on set they've been very motivating, and they haven't made me feel like, you know, मैंने एक ही फिल्म की है या 3 ही फिल्म की है, इन्होंने बहुत किए हैं, you know। रणवीर is like
Ranveer. But I haven't been made to feel like that by any of them. So I think that would be a similarity. Thanks. ये देखो मिल गया शॉट मिल गया यहाँ Relax. पे दिनेश सर बिफोर वी रैप अप we've interacted on a couple of occasions यहाँ पे अलग-अलग फिल्मों की बातें करी हैं हमने तुम्हें पैर छुआने हैं कमाल हो रहा है so I know but sir पिछले 10 साल में how has the scenario for you as a producer changed like आपने क्या-क्या changes देखे अपने आप में and इम्तियाज सर में भी filmmaking has become democratic if you've got a good story it works come what may right and we are all classic examples of all of that so if you have a story to tell and you have a voice you get to make it today and there's not a better time for films and as a producer इम्तियाज सर में क्या-क्या changes आए सर Imtiaz शिकायत how कर दो have you सर changed in 10 years I think he's become younger. Become a better person. He's become you haven't. He's become Only because I he's have, become younger and sexier. What do you agree? I totally agree. Age is suiting him. बनता है. So this Valentine's Day we're gonna go and watch Love Aajkal. It's time for the final photo op. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you guys you very were much. Superb. Thank you. And this Thank was amazing. Group thingy and then solos we'll do. All right, so it's time to invite on stage the producers, ladies and gentlemen. Okay, your producer साहब, your director साहब, both of them are here. लेकिन मुझे पहले बताएं नीचे मीडिया ने देखा और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे यहाँ वहाँ it's trending and how? What do you have to say about the response जो हमने नीचे देखा है? नीचे जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिस्पांस मिला है आप सबकी वजह से वो दिस इज नॉट डन यार कार्तिक वाले कहाँ हैं और सार्थक वाले कहाँ हैं कार्तिक आई थिंक ये यहीं से आ रहा है सबसे ज्यादा So yeah, this is what do you have to say, Karthik and Sara? इसके बारे में क्या कहेंगे? इनका प्यार नहीं खत्म हो रहा उनका पीछे ही बोला था और मैं फिर से बोलने वाली हूँ कि आप लोगों ने जो ये सातरी टी-शर्ट्स पहने हुए हैं आप लोगों ने बिना हमें स्क्रीन पर देखे हुए इतना प्यार दिया है we're not taking the pressure of hoping to live up to it but we're really going to try and thank you so much thank you for all the love and I hope you accept the film the way you've accepted the trailer बहुत अच्छा लगा फिर नारेबाजी चालू है लगे जा रहे हैं हम लोग You know, this is the only film जिसके ट्रेलर के आने से पहले कई सारे ट्रेलर्स ऑलरेडी घूम रहे थे फर्स्ट लुक से लेके लोगों ने बनाए थे हाउ डिड यू ऑल लाइक द फर्स्ट लुक ऑफ द मूवी तो ट्रेलर के लिए तो और ज्यादा हल्ला होना चाहिए ना हाउ डिड वी ऑल लाइक द ट्रेलर सुपर हिट है चलो चलते हैं सुपर हिट है सर खत्म मतलब कमाल 100 stars guys अच्छा how many of you are all set to break dance I mean dance So एक बार करके दिखाओ you guys sing आहू आहू and do it for us ना 1 2 3 4 आहू 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 ये क्या हो गया आप लोग को नहीं समझा didn't like it खुशी की बात है दिखाना है थोड़ा so let's do it one more time with these fellows 1 2 3 only for them and you have to do something here I don't know 1 2 3 एक बार हम दोनों ने ना एक भी बार अभी तक ट्रेलर नहीं देखा स्पेशली सात्विक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखा तो वो बनता है तो एक बार और ट्रेलर देखेंगे हो जाए बनता है कमाल यार जलवे खत्म Yes, presenting Love. क्यों पीछा कर रहे हो तुम मेरा? मैं आज के बाद आपका पीछा नहीं करूँगा। मैंने कहा तुम्हें तुम मेरा पीछा मत करो।